Hello friends, welcome to Dan Law. In today's lecture series we are going to study process to compel the production of thing, जो कि सेक्शन 91 से 105 तक जिसकी बात की गई है, 91 से 105 तक बात की गई है। ये बेसिकली पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी एंड पार्ट डी में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट सेइज दैट समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स, सो सेक्शन 91 to 92, and part B is search warrant between section 93 to 98, and part C is general provisions relating to searches 91 to 101, and part D is miscellaneous part. So this is defined between section 102 to 105. So इससे पहले हम लोगों ने बात किया था, before this chapter studied about process to compel appearance, where the summons, warrant of arrest, proclamation and attachment and others rules regarding these process. So we studied that. So now the process to compel appearance is not here. Now the process to compel the production of things. Process to compel appearance is all about the appearance of the person in a court. But process to compel the production of things, that there is a requirement of such a document in the court or by the police officer. So the court summons and the police officer issue the notice or written order. Okay, come to part A, summons to produce. Summons to produce document or things. Whenever any court or any officer in charge of police station considers that the production of any document or other things is necessary or desirable for the purposes of any investigation, inquiry, trial or other proceeding under this code by or before such court or officer, such court may issue a summon or such officer a written order to the person in whose possession or power such document or thing is believed to be, requiring him to attain and produce it, or to produce it at the time and place stated in summons or order. It means here, whenever any document is required by the law, the court can issue summon to the person by the law. So the court can issue a summon to that person. There is a requirement of a document only, not the person. So if there is a requirement of document, then the court can issue summon to that person, and on whose possession that particular document or things or a goods is there. So that document is to be delivered to the court immediately when the summon is issued by the court of law. So procedure is like, कोर्ट किसी व्यक्ति को कब कंपेल कर सकता है किसी डॉक्यूमेंट का कोई चीज़ के लिए. सो अगर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो कोर्ट क्या कर सकता है, कब्जे में कोई चीज़ है जिसकी ज़रूरत है तो उस व्यक्ति को कोर्ट समन देगा कि उस डॉक्यूमेंट को आप कोर्ट में जमा कर दो. और जैसे क्लॉज 2 में बताया गया है, एनी पर्सन रिक्वायर्ड अंडर दिस सेक्शन मेयरली टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और अदर थिंग शैल बी डीम्ड टू हैव compiled with the requisition if he causes such document or things to be produced instead of attaining personally. ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पर्सनली अटेंड करना. डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस इज सफिशिएंट, डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड, पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड. ओके, सो डॉक्यूमेंट you will have to submit the document only, not the physical presence of person is required there. So document जमा कर दिया आपने, ये ज़रूरी है. So इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, ये तीन चीज़ याद रखिएगा. इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल में कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी उस केस से तो उसको ये कब्जे में लेने के लिए उस चीज़ को समन भेजेगा कोर्ट, या फिर पुलिस स्टेशन से पुलिस ऑफिसर जो होंगे वो उसके लिए नोटिस देंगे, ये नोटिस इशू करेंगे या रिटन ऑर्डर देंगे. पुलिस कभी समन नहीं करती है, समन कोर्ट करता है. ठीक है. And nothing in this section shall be deemed to affect section 123 and 124 of Indian Evidence Act or the Bankers Books Evidence Act 1891. बेसिकली सेक्शन 123 एंड 124 बात करता है एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट और ऑफिशियल कम्युनिकेशन की बात करता है. एंड क्लॉज बी बताया है, टू अप्लाई टू द लेटर, पोस्ट कार्ड, टेलीग्राम और अदर डॉक्यूमेंट और एनी पार्सल और थिंग इन द कस्टडी ऑफ द पोस्टल टेलीग्राफ. ये उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा. कोई पोस्ट कार्ड है, कोई लेटर है, टेलीग्राम है, कोई अदर डॉक्यूमेंट्स है, कोई पार्सल है, थिंग्स जो कि कस्टडी किसके, पोस्टल टेलीग्राफ के अथॉरिटी में कस्टडी है, तो उस पर भी ये अप्लाई नहीं होगा. ये यहाँ पे कहा गया है.
बेसिकली ये अक्यूज्ड पे भी अप्लाई नहीं होता है, ये जो डॉक्यूमेंट के लिए आप कंपेल नहीं कर सकते विटनेस के लिए। तो ये जो सेक्शन 20 क्लॉज 3 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, सेक्शन 20 क्लॉज 3 विच इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेयर द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ conviction for offense, 20 clause 3 says no person accused of any offense shall be compelled to a witness against himself. सो किसी अक्यूज के अगेंस्ट भी ये नहीं इशू किया जा सकता है। समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और थिंग का करने का मतलब है केवल आपको डॉक्यूमेंट जो है, जो कब्जे में कोई चीज़ है, डॉक्यूमेंट है, पत्र है जिसकी ज़रूरत है, वो आपको कोर्ट में जाकर जमा करना है। वो किसी के द्वारा भी जमा कर सकते हैं, जो कि 91 क्लॉज 2 में बताया गया है। 92 प्रोसीजर एज टू लेटर्स एंड टेलीग्राम। व्हाट इज द प्रोसीजर एज टू लेटर्स एंड टेलीग्राम? इसके बारे में बताया गया लेटर्स एंड टेलीग्राम के बारे में कि इसकी प्रोसीजर क्या होगी। इन दिस इट हैज़ बीन सेड इफ एनी डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग इन द कस्टडी ऑफ अ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी इज इन द ओपिनियन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट or the court of session or high courts wanted for the purpose of any investigation, inquiry, trial, other proceeding। जैसे कि मैंने बताया कि कब्जे में कोई भी चीज़ है जिसकी ज़रूरत है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ओपिनियन से, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ओपिनियन से, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट के ओपिनियन से, अगर उसकी ज़रूरत है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, तो वो उसके लिए समन कोर्ट जारी कर सकता है। कोर्ट कैन इशू समन एंड पुलिस स्टेशन, द पुलिस कंसर्न पुलिस ऑफिसर राइट अ नोटिस ऑफ इशू और कैन राइट अ ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड समन। बट पुलिस स्टेशन वेयर द पुलिस इंचार्ज कैन राइट ओनली नोटिस और रिटन ऑर्डर। ओके, अंडर दिस कोर्ट सच मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ रिक्वायर्ड टू पोस्टल टेलीग्राफ अथॉरिटी एज टू, वो ये कहता है कि पोस्टल टेलीग्राफ अथॉरिटी को ये बोलेगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है, मान लिया जाए कोई ऐसी डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसा दस्तावेज है जिसकी ज़रूरत पड़ रही हो और वो दस्तावेज पोस्टल टेलीग्राफ अथॉरिटी के कब्जे में है, तो वो डॉक्यूमेंट वो किसको देगा? जिसको ज़रूरत है या फिर कोर्ट को देगा, ये कहा गया। यानी as the case may be, to deliver the document or a parcel or thing to such person as the magistrate or court directs. Magistrate or court directs, they will give only such document to the such person the magistrate or court directs. And second, if any such document, parcel or things is in opinion of any other magistrate, whether executive or judicial, or of any commissioner of police or district superintendent of police, wanted for any such purpose, he may require the postal or telegraph authority, as the case may be, to cause search to be made for and to detain such document, parcel or thing pending the order of a district magistrate, chief judicial magistrate or court under subsection 1. So thank you so much.